Hello. Welcome to this wonderful channel. We are again came with a new chapter of chemistry. So today we are starting with atomic structure. Am I audible and visible? So please tell this in comment that whether I am audible and visible after saying this. I'm starting this class with your shake. Okay, students. So today's our topic is atomic structure. Let me first conclude that what is atom. First of all, this is a element in a periodic table what we see that hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, so on. So first of all, this is an element, and the smallest particle of that and the divisible particle of element is that of atom. After divisible of atom, we get concluding with a in a modern way that it is a electron that is revolving, proton and neutron. So proton and neutron make up two positive charge in the nucleus and electron that is revolving in the orbit according to know what we know now. Else, okay. Now let me conclude with the first of all what is a cathode ray. I am हमको पता है कि आपको ये बात पता होना चाहिए कैथोड रे के बारे में। कैथोड रे हम क्लास 9 में भी पढ़े हैं एक बार। First of all, write down the characteristic of cathode ray. Characteristics of cathode ray. Okay. First point, that is a negatively charged particle. तो पहला बात इसे negatively charged particle क्यों कहेंगे? Because it is deflected by electrical and magnetical field both. It is deflected. Okay. Before starting the cathode ray, first let me discuss with the discovery of cathode ray. आप सभी को एक गलत एजम्पशन होगा कि कैथोड का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया होगा. But what I am saying, that J.J. Thomson was not the discoverer of cathode ray. The actual discoverer of cathode ray was our विलियम फराडे ने इसको डिस्कवर किया है. और जे थॉमसन ने कैरेक्टरिस्टिक बताया है. उसने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया है, ई बाई ए में रेशियो के बारे में बताया है, चार्ज बाई मास रेशियो के बारे में बताया है कैथोड का, वो बताया है जे थॉमसन ने. और विलियम फराडे ने हमको कैथोड का डिस्कवरी के बारे में बताया. तो इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे. अब आ जाते हैं कैथोड रे का सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है, इट ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड. इट ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड. इट ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड. In the absence of electrical and magnetical field, it travels in a straight line. So it is very important point that this shows the property of cathode ray that it is a negatively charged particle, because we write that in the absence of electrical and magnetical field, you travel in a straight line. Okay. Next point is that it is deviated by electrical phenomena. जी in the phenomenon prove that. हाँ, यही बात हम बता देते. और एक तो that it is
इसका हाईली काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी। वाई एम सेइंग दिस थिंग, एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन पार्टिकल। इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन मूव करता है? बिकॉज इन द डिस्चार्ज ट्यूब इफ वी प्लेस अ रोटेटिंग व्हील देन वी विल शो दैट it moves, and this prove that it is a straight line because it is traveling in straight line, then only it is moved, then only this rotating wheel is moving. So this can give that it is a straight line particle in absence of electrical and a magnetical field. Now next बात हम आते हैं अभी न्यूट्रॉन के बारे में। देखो ये एक रैपिड रिवीजन वीडियो है, मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही पढ़ाऊंगा। न्यूट्रॉन कैसे आ गया ये बात आप पूछेंगे, पर आना आप देख लो। न्यूट्रॉन का जनरल इक्वेशन अभी तक पता नहीं होना चाहिए किसी को, बता देता हूँ। न्यूट्रॉन का जनरल इक्वेशन होता है B94 प्लस ऑफ He4 प्लस 2 गिव्स C12 6 प्लस ऑफ N10। अगर सिमिलरली ये N10 के जगह अगर मान लो ये N01 रहता तो इसको क्या कहा जाता है? इसको न्यूट्रॉन नहीं कहते, इसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। ओके, इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ न्यूट्रॉन। का डिस्कवरी किसने किया है? जेम्स चैडविक ने किया है। डिस्कवर है जेम्स चैडविक। स्पेलिंग देख लेना, जेम्स चैडविक। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन का कंसेप्ट था, मैं सिर्फ डिस्कवरी के बारे में पूरा चाह रहा हूँ। अब बात करूँगा जे थॉमसन के बारे में। सबको ये बोर्ड पे ध्यान रखना चाहिए, मुंडी ऊपर को पेन हाथ पे, कॉपी नीचे, लिखते जाइए। इम्पॉर्टेंट बात है, लिखिए मत लिखिए पर सुनते जाइए इस इम्पॉर्टेंट बात को कि जे थॉमसन ने क्या किया एक्चुअली। मैं पहले ही बता दिया हूँ, ये एक रैपिड रिवीजन है। आपको थंबनेल में ही मिल जाएगा। ये रैपिड रिवीजन वीडियो है, मैं कोई डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा। डिटेल के लिए दूसरा चैनल रेफर कर सकते हैं, पर माई चैनल इज फॉर ओनली रैपिड रिवीजन। पहले आते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बिकॉज इट अट्रैक्टेड, इट इज गोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दिस प्रूव दैट इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। Okay, one electron will be equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the mass of one electron के मास को इतना नेग्लिजिबल माना जाता है जिसके कारण इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। एटम के मास में इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। क्या आप बता सकते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.7 माइनस 19, 10 to the power minus 19। सिमिलरली 1 मोल का कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा? ये बात बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट बात है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500, जिसको कहा जाता है 1 फराडे। 1 फराडे कहा जाता है इसको, या कहा जाएगा 96500 सी मीन्स कोलम्ब। अब अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम वी आर गिविंग यू ऑन। पहले अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, मैंने कौन किसके ऑर्डर पे, वेवलेंथ के ऑर्डर पे कौन आता है? सबसे पहले आता गामा रे, सबसे पहले कॉस्मिक रे, कॉस्मिक के बाद गामा, गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद यूवी रे, उसके बाद वायलेट रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। हटाओ इसको, कुछ समझ में नहीं आया, कैसे याद होगा नहीं पता। तो एक शॉर्ट ट्रिक देखो, let me conclude this with a short trick. easy by heart learn कर लीजिए इस ट्रिक को। क्लासिकल गाड़ी
XUV in my range. मैंने क्या लिखा? क्लासिकल गाड़ी XUV in my range. Classical means cosmic. G means gamma. X means X-ray. U means अल्ट्रा वायलेट रे. इसको लिखते हैं, नहीं तो बाद में अरेंज करते डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो अच्छे से लिखते थोड़ा सा समझाने के लिए कैसे समझते, पर लिखने के टाइम पे अच्छे से लिखना पड़ता है. UV रे लिखता है, अल्ट्रा UV रे. ये है वायलेट रे, ये माइक्रोवेव्स. एंड R is रेडियो वेव्स. कॉस्मिक रे. अब देखो, अब एक ट्रिक बताता हूँ. आप इसको अरेंज कैसे करेंगे. कॉस्मिक रे के लिए सब जगह पे आपको ई 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 डेल देना है. मीन्स ये ले सकते. कॉस्मिक रे इज ग्रेटर देन गामा रे, गामा रे इज ग्रेटर देन एक्स रे, एक्स रे इज ग्रेटर देन यूवी रे, यूवी रे इज ग्रेटर देन वायलेट रे, वायलेट रे इज ग्रेटर देन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन रेडियो वेव. तो ऐसे याद कर लेना है. ग्रेटर देन का साइन लगना नहीं चाहिए, लेस देन का साइन लगना चाहिए. कॉस्मिक रे लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है बोल के इसको रेस्पेक्ट पे लिए किया गया है, लेस देन. ओके, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ. जितना ख़राब हो उसको भरपाई कर देता हूँ आपके लिए. वेट वेट वेट, अभी मैं तो है ही, मैं लिख देता हूँ. अब उठा सकते हैं, अब फाइन है. तो ये शॉर्ट ट्रिक बताया नहीं बताया, मैं बता दिया आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. अब विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ कितना होता है सबको याद रखना चाहिए. विजिबल रीजन कितना होता है. विजिबल रीजन होता है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. जब हम सवाल करेंगे, सवाल के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इस बातें को अगर आप ध्यान में रखते जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब बात करेंगे डायरेक्टली हमारे न्यूमेरिकल पार्ट, और बेसिकली हमारे नीट का वीडियो है तो न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे. सबसे तो आ जाते हैं प्लैंक कांस्टेंट पे. मैक्स प्लैंक का थ्योरी देखिए. मैक्स प्लैंक का थ्योरी क्या बताता है. मैक्स प्लैंक थ्योरी, थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक. ये सब क्या पढ़ा है. क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है. अभी तक हम क्वांटम मैकेनिक्स पे नहीं आए हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, नॉट क्वांटम मैकेनिक्स. सो आ जाते हैं मैक्स प्लैंक का थ्योरी के बारे में. मैक्स प्लैंक थ्योरी. सो व्हाट इज मैक्स प्लैंक थ्योरी, कैन एनीवन गेस. Radiant energy is not emitted or absorbed कंटिन्यूसली. इट इज रेडियंट एनर्जी. कोई एक रेडियंट एनर्जी है, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सब रेडियंट एनर्जी है. तो इट इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली बट इन अ मैनर ऑफ डिसकंटिन्यूसली इट इज एब्जॉर्ब्ड. तो लिख देते बट इन अ मैनर ऑफ डिसकंटिन्यूसली बट इन अ मैनर ऑफ डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट. और उन स्मॉल पैकेट को कहा जाता है क्वांटा. और इन द रेस्पेक्ट ऑफ लाइट इट इज नोन एज फोटोन. इन द मैनर ऑफ डिसकंटिन्यूसली in the manner in the form of small packet, in the form of small packet, that is quanta or photon और क्वांटम लिख लो.
quantum or photon with respect of w what is it with respect of light. Next thing, the amount of energy with quantum radiation इसको पहले लिखिए उसके बाद बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट. गर्मी बहुत है इधर तो पानी लेके आ गए सटाक के फिर से सो कॉल स्टूडियो दसुटा. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट. ये पहला पॉइंट तो था कुछ. नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है द रेडिएंट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. क्या मतलब? The amount of energy emitted or absorbed, the amount of energy emitted or absorbed is directly proportional to frequency of radiation. हाँ, इसी से अब बनेगा रिलेशन अपना. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट E इज इक्वल टू एच म्यू